Now we will study about divergence of the vector field. So suppose we have the vector A. So what will be divergence of this vector A? First of all, remember in gradient there was a scalar function. So we, in order to find the gradient of that vector, we are differentiating the whole scalar function t, है ना? But here divergence of a vector field, and there is also a vector operator. So we will differentiate only x component, y component, and z component. This is the basic difference. So divergence of vector is always a scalar quantity, since we know that dot product is scalar. So we are doing dot product of two vector quantities, so it will be a scalar quantity. Okay. What is the physical meaning of divergence? As its name suggesting that the direction of del dot A is measure of how much of the vector field separate, है ना? जैसा कि मीनिंग में दिखा है डाइवर्जेंस का मतलब ही क्या होता है? डाइवर्ज करना, फैलना, स्प्रेड करना. सो जो अपना वेक्टर है वो कितना फैल रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, वो इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली. अबाउट फॉर ऑल दोज वेक्टर फॉर विच divergence of A is 0, we call them solenoidal vectors. So what are solenoidal vectors? For the vectors which have divergence is 0 are called solenoidal vectors. Means they will not diverge, they will form a closed loop like situation. So here the magnetic field, we know the magnetic field produces closed loop, so the divergence of closed loop will be 0. So B is a solenoidal vector. Now there is a schematic diagram of divergence. This is spherical shape. So divergence of A is positive, and if A is R vector, then what will divergence? Xi cap plus y cap plus z k cap, and so on. So divergence will be 3, and it is positive, so greater than 0 means divergence is positive. Here also we can see lines are diverging with each other, means divergence of A is positive. And if we represent this vector as A equal to z k cap, so what will be divergence? Divergence will be got by S is 1, so 1 is greater than 0. Here also, here lines are same. So suppose there is a constant function C, A equal to C k cap. So if moving constantly in upward direction, then divergence is 0, means lines are not spreading out or not coming inside. These are constant, so for the constant functions, constant vectors, divergence is 0. Now see this case. What is happening here? Lines are coming inwards, means divergence is negative. So function is A equal to minus R cap. So A minus C less than 0. Now we'll see how divergence is related with the flux. Okay. See, suppose we have the divergence del A, limit del V tends to 0, 1 by del V, close integration of A dot d, means it is relating flux with respect to volume. This is the divergence. Always remember, flux with respect to volume is called divergence. Okay. So flux through a closed loop inside a surface is positive, inside a sink is negative, है ना? क्यों? क्योंकि सोर्स से जो लाइन से वो स्प्रेड आउट करेगी, डाइवर्ज करेगी, लेकिन सिंक में डाइवर्ज नहीं करेगी, एक्यूमुलेट करेगी, इसलिए डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा. सो किसी भी सोर्स और सिंक के लिए 0, मतलब कोई सोर्स और सिंक नहीं है तो फिर 0 आएगा, और इक्वल अमाउंट ऑफ सोर्स और सिंक जा रही है तो भी 0 आएगी, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? फ्लक्स की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या है? चार्ज बाहर है, चार्ज बाहर है तो फ्लक्स 0, मीन्स डाइवर्जेंस भी 0. ठीक है, जहाँ फ्लक्स 0 है वहाँ डाइवर्जेंस भी 0. नाउ विल डिस्कस अबाउट करंट. We know what is the current. This is the current. Remember, del cross is this.
अभी सबको पता है ना, इतने बेसिक से मैथमेटिक्स सबको आती है अपने को कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है. सो कर्ल ऑफ वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दिस. देखो वहाँ पे क्या था कि जो अपना डाइवर्जेंस था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, फील्ड ऑफ लाइन्स का डाइवर्जेंस को, और सोलेनोइडल वेक्टर्स को. यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलेशन. किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट. सी फॉर सर्कुलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन. सर्कुलेशन इन अदर वर्ड्स वी कैन से रोटेशन. So as its name implies, curl of a vector field A, that is del cross A, is a measurement of how much the vector field A curls, okay, around a point in space. So if I have R equal to A vector, then del cross A equal to 0, or A equal to Z cube, del cross equal to 0, A equal to A cube, del cross equal to 0. And since curl is 0, we will get no rotation. Okay, in this situation we will get no rotation, means no curl, means curl of A vector equal to 0, and curl of A is represent line integral with respect to area. वहाँ क्या था, एरिया था with respect to वॉल्यूम, या लाइन with respect to area. So basically curl represent is circulation with respect to एरिया. वहाँ क्या था, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एंड कर्ल रिप्रेजेंट सर्कुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया. ओके, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस. ए इक्वल टू दिस जेड आई कैप एक्स वाई कैप एंड जेड के वाई के कैप. सो डेल क्रॉस इक्वल टू, वी नो हाउ कैन फाइंड आउट इफ दिस इज आई कैप, देन व्हाट इज del by del y of az, del by del y of az1 minus del by del z of ay, ये 0 आ जाएगा. फिर यहाँ पे जे आ रहा है, जे आ रहा है, जे के बाद क्या था कि मीन्स del by del z of x, del by del z of x 1 माइनस del by del x of z 0 प्लस के कैप. यहाँ के आ रहा है तो क्या था, के बाद x आता है, del by del x of y, so del by del x of y 1 माइनस del by del y of x, del by del y of x, है ना. सबकी अपनी एनर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो. आप चाहो तो मैट्रिक्स सोल्व करो, या जैसे मैंने बताया ऐसे करो. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, दिस विल बी द सॉल्यूशन. ओके, नाउ वी हैव f equal to this x I cap plus 2 y j cap plus 3 z k cap. So we have to find out del cross f. So first del cross f निकालना है. तो क्या वही ये आया है, क्या आएगा, del by del y of z, सॉरी del by del y of z ही आएगा. z तो है ना यहाँ पे, देखो चलो निकाल लेते हैं इनको. del cross f निकाल लेते हैं. del cross f इक्वल टू आई कैप, और आई कैप के बाद क्या आएगा, del by del y of z 3 माइनस del by del z of y 2, ठीक है, प्लस माइनस के कैप. फिर क्या आएगा, del by del z of x 1 एंड del by, कर लेना, हो जाएगा. डेल को सब 0 आ रहा है, करूँ क्या, चलो कर देता हूँ, तुम बोल रहे हो. डेल को सब क्या रहा है अपना, del by del y of z, del by del z of y, जे के पे यहाँ पे आ गया. तो क्या बचेगा अपने पास, जे आ गया. तो जे के बाद क्या आता है, क्या आता है, तो del by del z of x, del by del z of x 0 माइनस del by del x of z, ये भी 0 प्लस के कैप में क्या आ रहा है, del by del x of y, del by del x of y 0 माइनस
डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स, ये भी जीरो। ठीक है, ये भी जीरो आएगा। थोड़ा सा ध्यान चूक किया अपना। देखो आई आ गया ना, तो क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, ये जेड, इसमें क्या आएगा, जीरो माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई, ये वाई का कंपोनेंट ये जीरो आएगा। क्या रहा है, सब जीरो आ रहा है, इसमें जीरो आ गया है ना, सही किया था अपने में पहले। ओके, अब ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या है, ये स्क्वायर्टी आ जाएगा। इसी डेल्स को बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर या स्केलर ऑपरेटर। अब देखो डेल क्रॉस टी क्या होगा, क्रॉस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल क्रॉस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, सो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, और जिसका कर्ल जीरो होता है वो क्या हो जाता है, इरोटेशनल, मतलब जो अपना ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, डेल क्रॉस जीरो। ठीक है ना, मतलब जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके फॉर्म में, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की। याद रखना, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर फंक्शन में, किसकी स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट की स्केलर फंक्शन। क्योंकि इनका कर्ल जीरो हो रहा है, और कर्ल जीरो हो रहा है तो कर्ल जिसका भी जीरो होता है उसको बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। मीन्स ग्रेडियंट का कर्ल जीरो हो रहा है, मीन्स ग्रेडियंट क्या होगी, इरोटेशनल वेक्टर होगी। अब देखो कोई भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, डेल क्रॉस ई बराबर जीरो, तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो इसका कर्ल क्या होगा, जीरो। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाते, ये रोटेशन होते हैं, अपने को पता है। मीन्स ए को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किस में, ग्रेड फाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ ग्रेड फाई क्या है, स्केलर पोटेंशियल, सबको पता है, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इफ ए इज राइजिंग बिकॉज ऑफ डेल वी बाई डेल टी, है ना, होता है ना मैक्सवेल इक्वेशन से, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस केस में ई माइनस डेल फाई के इक्वल नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर का। अब थोड़ी छोटी सी बातें और याद रखनी है कि डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस क्या होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है। जैसे कर्ल ऑफ ग्रेड जीरो था, ऐसे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी जीरो होता है। देखो यहाँ पे क्या था, कर्ल ऑफ ग्रेड जीरो था, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, जीरो। हमको पता है जिनका डाइवर्जेंस जीरो होता है उनको बोलते हैं सोलेनोइडल वेक्टर्स। क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो हो रहा है और डेल क्रॉस भी जीरो आ रहा था, इसलिए ये सोलेनोइडल वेक्टर्स हो जाएगा, डेल क्रॉस भी जीरो। और आर सोलेनोइडल वेक्टर्स किसमें, कर्ल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसलिए बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे वहाँ पे अपनों ने क्या लिखा था, कर्ल ऑफ ग्रेड इज जीरो, और जिसका भी कर्ल जीरो होता है वो होता है इरोटेशनल वेक्टर्स। मीन्स एवरी इरोटेशनल वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज gradient of a scalar function t. Similarly, divergence of curl is getting zero here, means so it is a Sohn-Order vector. What is Sohn-Order vectors? Divergence of those vectors are zero. So del dot b equal to zero, and since del dot b equal to zero, so every Sohn-Order vector can be represented as curl of a function. अब देखो ये
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा बताओ, 3.21, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, याद रखनी है अपने भाई ना, आइडेंटिटी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी था ना अपना, सेम वैसे ही। वही 3 to 1 माइनस 1 to 3, 3 to 1। अच्छा ये ग्रेड में है ना, वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में था, की फॉर्म में। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, इंटीग्रल कैलकुलस अपन बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।